Students, Assalamu alaikum. My name is Ahmed Ali and I am lecturer zoology from Higher Secondary School Akchamar Kargil. Today I am going to deliver a topic on tools of genetic engineering. In the last class I delivered a topic on genetic engineering, that was principles of genetic engineering, and second, tools of genetic engineering. I have delivered part first of the tools of genetic engineering, that is restriction endonuclease enzyme and exonuclease enzyme, endonuclease enzyme. Then today we will discuss about the cloning vectors, that is part second of our lecture number 2. Okay. So in part second, we will discuss about the cloning vectors. So what are the cloning vectors? Actually, I have told you in the principle of genetic engineering that in the genetic engineering, we insert a foreign gene or a foreign DNA into a plasmid, okay, or a vector which acts as a vehicle to carry the foreign DNA into a host DNA. And thereafter, it multiplies in the host DNA and form large number of copies, that was known as cloning or a clone, okay, which are useful for formation of different types of products and services in case of biotechnology. Okay. So today we will discuss about the cloning vectors. So what are the cloning vectors? The cloning vectors are the vehicles, or you can say the vectors are the vehicle DNA, okay, which carries our foreign gene or the foreign or alien DNA into a host. Okay, so we have two types of vectors. So first is, that is plasmid. We commonly use two types of vectors. First one we will discuss about the plasmid, and the second one, that is bacteriophage. Bacteriophage. So the plasmid and the bacteriophage both infect the bacteria, both of them infect the bacteria. They are known for infecting bacteria. The bacteriophages are in large number than that of plasmids. Okay, their number is large in the E. coli cells or other bacterial cells than that of plasmids. Okay, so their number is large. It means they produce more copy number of the foreign DNA when we link the foreign DNA with the bacteriophage than that of plasmid DNA. Okay, so they produce more copy number of our alien or foreign DNA, foreign gene. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इट्स का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज जो है ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर ऑफ फॉरेन जीन प्रोड्यूस करते हैं इन द कहां पर बैक्टीरियल सेल देन दैट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कॉपी नंबर बढ़ाना हो तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, उसको कॉलोनीज बनाना है, ज्यादा से ज्यादा क्लोन्स बनाना है, किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर. सो वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ दिस plasmid or the bacteriophage or you can say the cloning vectors. What are the features? कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे वेक्टर्स हैं वो कामयाब होंगे, किसी होस्ट के अंदर वो कामयाब हो सकेंगे. हमारे पास क्या क्या उसके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए. सबसे पहला फीचर दैट विल बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ replication, you can say ORI. So what is ORI? Origin of replication होना जरूरी है किसी वेक्टर डीएनए के अंदर. एग्जाम्पल प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. ठीक है, आप सब जानते हैं, परसों भी मैंने बोला है, प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन, कहां पर ये मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular DNA of the bacteria is known as plasmid. ठीक है, which is able to infect or transform into another bacteria. Okay, that is called transformation. ठीक है ना.
सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? दीज आर द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच आर फाउंड इन केस ऑफ प्लाज्मिड और द वेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स। ओके, सो ये वो सीक्वेंसेस है जहां से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस फ्रॉम वेयर क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। व्हाट रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। एग्जांपल, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए स्टार्ट्स। ठीक है, सो इसका मतलब यह हुआ किसी प्लाज्मिड के अंदर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है। ठीक है, जितना हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? जो कॉपी नंबर बनेगा किसका? फॉरेन डीएनए का। सो इसका मतलब आवर फॉरेन जीन शुड बी लिंक्ड विद द origin of replication in a plasmid। क्या होना चाहिए? It should be linked, कौन सा? Our foreign gene, foreign FG लिखता हूं शॉर्ट में, should be linked with the origin of replication या ORI आप कह सकते हो। ठीक है, जहां से जितना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस प्लाज्मिड की कॉपीज बनेंगी उतना ही कॉपी नंबर हमारा फॉरेन डीएनए का बन जाएगा। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर अच्छा होगा तो कॉपी नंबर भी क्या होगा? कॉपी नंबर ऑफ हमारा फॉरेन जीन का कॉपी नंबर जो है वहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन सेकंड वी हैव, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास क्या है? वो है सिलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। The second feature of our cloning vector is that of selectable marker। समझ में आया? तो what is selectable marker? Selectable marker वो जो है जीन होता है, ठीक है, जो फॉरेन जीन मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपका फॉरेन जीन या कोई भी जीन, एग्जाम्पल आपका प्लाज्मिड के अंदर जीन होगा, द सेलेक्टेबल मार्कर विच इज एबल टू आइडेंटिफाई द कौन से? नॉन रिकम्बिनेंट्स, ठीक है, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, सो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? सेलेक्टेबल मार्कर मींस ये मार्क करता है, सेलेक्ट करके मार्क करता है। एग्जाम्पल, किसी को हम करेक्ट है या इनकरेक्ट है ऐसे टिक मारते हैं ना, ऐसे ये टिक मारता है। कौन? वो जीन टिक मारता है कि कोई, एग्जाम्पल हमारे पास जो बाहर से फॉरेन जीन हमने किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में या होस्ट बैक्टीरिया में हमारा फॉरेन जीन है या नहीं है? कैसे मालूम होगा? ठीक है, तो इसीलिए वो जो जीन है अगर उसमें पाया जाता है, ठीक है, अगर जीन पाया जाता है फॉरेन जीन किसके अंदर? हमने इंसर्ट किया है होस्ट के अंदर, तो इसका मतलब हो गया वो हमारा क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग करता है। इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ये सिलेक्ट करता है, उसके बाद उनको एलिमिनेट करता है। क्या करता है? सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करता है और उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, किसको एलिमिनेट करता है? इट आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट्स द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, सो it identifies and eliminate the non-transformants from that of, ठीक है, from that of transformants। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जीन्स है। एग्जाम्पल, वी हैव द बेस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर किसके लिए? आपने देखा है बहुत सारे बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। जितना हम एंटीबायोटिक खाएंगे वो ठीक ही नहीं होता इंसान, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्ट हो गए हैं, वो चेंज हो गए हैं, है ना, उस एंटीबायोटिक से। क्योंकि बिकॉज ऑफ
some antibiotic resistant genes found in the plasmids. They are resistant to the particular antibiotic. Example, we have which antibiotic? For example, we have tetracycline या ampicillin, एम्पीसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पीसिलिन है, एग्जाम्पल इन्हीं एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंट हो गए बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ antibiotic resistant gene in the plasmid of DNA. So these antibiotic resistant gene act as selectable markers for the foreign gene. Example, if we remove any of the antibiotic resistant gene and insert a foreign DNA in place of that antibiotic resistant gene, what will happen? The bacteria will die in the medium containing ampicillin or tetracycline. ठीक है, तो वहां पर वो बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ठीक है जी. देन वी हैव थर्ड फीचर ऑफ आवर क्लोनिंग वेक्टर इज, क्या है हमारे पास, क्लोनिंग साइट्स. क्या है, क्लोनिंग साइट्स. ठीक है, तो क्लोनिंग साइट क्या हो गया हमारा, देखो क्लोनिंग साइट होता है जहां पर वो रिस्ट्रिक्शन साइट जहां पर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं. क्या करते हैं, फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं इनटू द प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, उस साइट को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट. ठीक है, सो ए वेक्टर मस्ट हैव ए फ्यू क्लोनिंग साइट्स और वन क्लोनिंग साइट. वन और फ्यू क्लोनिंग साइट्स उसमें आमतौर पर होती है. क्या होती है, फ्यू क्लोनिंग साइट्स और ए सिंगल क्लोनिंग साइट. सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं. लेकिन प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग. क्या करेगा, अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा, एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर क्लोनिंग साइट से एक से ज्यादा है, इन केस ऑफ एग्जाम्पल ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है ये हमारा. ठीक है, PBR322, ये कौन सा वेक्टर है हमारा, PBR322 एक वेक्टर है. ठीक है, सो इसमें क्या है, बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं. एग्जाम्पल वी हैव BAM H फर्स्ट क्लोनिंग साइट, SAIL1 क्लोनिंग साइट, PUV क्लोनिंग साइट, PUV फर्स्ट, PUV सेकेंड क्लोनिंग साइट, PST फर्स्ट, EcoRI. ठीक है, CLA फर्स्ट, HAND सेकेंड. Okay, so these are the different cloning sites or restriction sites which are found in case of PBR322 vector, E. coli vector. ठीक है, प्लाज्मिड जिसको हम कहते हैं, वेक्टर मींस दिस इज ए प्लाज्मिड वेक्टर. ओके, अब क्या होता है, अगर इस एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें पाई जाती है, सो दिस विल कॉम्प्लिकेट द, क्या करेगा हमारा, क्लोनिंग. क्लोनिंग को हमारा कॉम्प्लिकेट करेगा. रिकम्बिनेंट डीएनए, बहुत सारे रिकम्बिनेंट डीएनए को जोड़ना पड़ेगा, फिर ये प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. आमतौर पर एक क्लोनिंग, सिंगल क्लोनिंग साइट होना चाहिए. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर क्लोनिंग साइट ज्यादा हो गई, अगर क्लोनिंग साइट्स यहां पर बहुत सारी हो गई, तो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा होंगी तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है मोर देन वन साइड में जो है कट मारेगा. ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग है इसमें वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ठीक है जी. तो अब देखो, अब क्लोनिंग साइट हमें कैसे मालूम होगा, एग्जाम्पल अगर ये कॉम्प्लिकेट कैसे होता है, एग्जाम्पल वी हैव, अगर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं BAM H फर्स्ट साइट, BAM H फर्स्ट साइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर PBR322. ठीक है, अगर हम BAM H फर्स्ट साइट में क्या करते हैं, कौन एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, कहां पर, किसकी जगह में, इन द प्लेस ऑफ, जहां पर BAM H साइट में क्या था, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है एक. ठीक है, जहां पर कौन सा जीन पाया जाता है हमारा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है. TET का मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. एग्जांपल AMP साइट है यहां पर, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है.
ठीक है, वो कहां पर पाया जाता है? पीयूवी फर्स्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, ये BAMH फर्स्ट साइड में। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये, आप लिख लेना। ठीक है, इसको रिमूव करके हम क्या करते हैं? इसकी जगह में एक फॉरेन जीन डालते हैं या फॉरेन DNA डालते हैं। सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? उसके बाद इसमें आपने क्या डाला? BAMH साइड की जगह में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रिमूव किया और इसमें एक फॉरेन क्या डाला? एक एग्जांपल यहां पर फॉरेन जीन डाला इसकी जगह में। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमारा क्या हुआ? रिमूव हुआ। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रिमूव होने की वजह से क्या होगा? अगर हम इसको किसी मीडियम में रखेंगे, किसको? इस PBr320 इस बैक्टीरिया को, ई कोलाई को किस में रखेंगे? मीडियम में रखेंगे, जहां पर इस मीडियम में रखेंगे जहां पर क्या होगा? जहां पर टेट्रासाइक्लिन होगा। ठीक है, क्या होगा? जहां पर पहले हम इसको रखेंगे एक मीडियम में जिसमें एम्पीसिलिन होगा। क्या होगा? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? द बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई विल सर्वाइव बिकॉज इट हैज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इट विल सर्वाइव। ओके, अगर हम इसको वहां से निकालेंगे, एम्पीसिलिन मीडियम से निकाल के कहां डालेंगे? उसके बाद फिर हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। किस में डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन, एग्जाम्पल कोई डिस्क में डालेंगे जहां पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? द एंटीबायोटिक विल डाई, बैक्टीरिया विल डाई ड्यू टू द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। क्यों मरेगा? बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, फ्रॉम द BAMH साइट। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा नहीं तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो क्या होगा? डेथ होगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज ए cumbersome process. It is a complicated process. We have to keep on changing the medium from tetracycline to ampicillin and then ampicillin baked into the tetracycline. So it is a very complicated process. To simplify this process and to identify the transformants, तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? एग्जाम्पल ये जब मर गया तो इससे हमें ये पता चला, इसका मतलब हुआ टेट्रासाइक्लिन में अगर ई कोलाई मर गया, ठीक है, इससे पता चला कि हमारा जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारा PBr320 ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। इसका मतलब इसमें हमारा जो फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इसमें मौजूद है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। ठीक है जी। टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस व्हाट विल वी डू? अगर इस प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसको आसान बनाना है, ठीक है, सो वी हैव टू क्या करेंगे? हम उसमें एक और चीज करेंगे, वी हैव टू ऐड द बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन। ठीक है, तो यहां पर एक हमारा एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ओके, उस एंजाइम की जगह में हम क्या करेंगे? उस एंजाइम की जो सीक्वेंस है, जो एंजाइम पाया जाता है प्लाज्मिड के अंदर, PBr322 के अंदर, उसकी जगह में हम दूसरा एक फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां पर क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट अगर हम करेंगे इस साइड में, बीटा गैलेक्टोसिडेज की साइट में अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इससे क्या पता चलेगा? हमारा जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डाइसैकेराइड्स, इसका काम क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ डाइसैकेराइड्स को ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम इसको कहीं क्रोमोजेनिक सपोज मटेरियल में रखेंगे या क्रोमेटोजेनिक मीडियम में रखेंगे इस मीडियम को, तो उससे हमें वहां पर ब्लू कलर मिलता है। क्या मिलता है? ब्लू कलर। नॉर्मल कंडीशन में मैं बोल रहा हूं, अगर हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट नहीं किया तो उस टाइम
ड्यू टू दिस बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम की वजह से हम उस बैक्टीरिया को अगर हम मीडियम में रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव कंडीशन में है, ठीक है। तो एक्टिव होने की वजह से वहां पर जो है ब्लू कलर मिलता है। अगर हम इसको क्रोमेटोजेनिक कोई एग्जाम्पल कल्चर मीडियम में, सपोज मीडियम में रखेंगे, ठीक है, जहां से कलर मिलेगा, सो वहां पर क्या मिलता है, हमें ब्लू कलर मिलता है। लेकिन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए को अगर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे तो द बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम क्या होगा, इट विल बी इनएक्टिवेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेस में जो सीक्वेंस था, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की जगह में हमारा फॉरेन जीन का सीक्वेंस जो है इंसर्ट हो गया। तो बीटा गैलेक्टोसिडेस क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। सो उसकी वजह से वो जो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम था दैट विल बी इनएक्टिवेटेड, क्या होगा, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो इनएक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, वो इनएक्टिवेट होने की वजह से जो है हमारा, अगर हम उसको कलर में रखेंगे, एग्जाम्पल क्रोमेटोजेनिक मीडियम में रखेंगे, क्रोमोजेनिक मीडियम में, तो वहां पर जो है व्हाइट कलर मिलेगा, मींस कोई कलर, उसका नेचुरल कलर मिलेगा, व्हाइट कलर, ठीक है। तो व्हाइट कलर जब हमें मिलता है, एग्जाम्पल डिफरेंट कलर जब मिला, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर जो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेस जीन है, एंजाइम है, दैट वाज इनएक्टिवेटेड। इट दिस प्रोसेस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन gene or foreign DNA, this process is known as insertional inactivation. Insertional inactivation. Insertional क्यों? Because of the insert of foreign gene. तो उससे ये हमें शॉर्टकट एक मीडियम में पता चला, चाहे इसमें मल्टीपल साइट्स होंगे, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, चाहे सिंगल क्लोनिंग साइट हो, अगर हम उस बैक्टीरिया को उस मीडियम में क्रोमोजेनिक सबस्टेंस उसमें रखेंगे, कलर में रखेंगे, कलरेशन, तो उसका क्या होगा, कलर जो है फेड होगा, ठीक है, व्हाइट कलर मिलेगा जो ब्लू कलर से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल एक्टिवेशन। इसका मतलब उसमें फॉरेन जीन जो है हमारा वहां पाया जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ, वो जो फॉरेन जीन पाया जाता है किसके अंदर, PBR322 के अंदर पाया जाता हो, तो वो जो है PBR322 वही बैक्टीरिया हमारा क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। वो क्या हुआ, दैट बिकम्स ट्रांसफॉर्मेंट। तो उससे हमें सिलेक्शन करने में मदद मिलता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। सो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि भाई आगे हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट विल बी द ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द थर्ड क्लास, ठीक है। थर्ड जो हमारा क्लास होगा वहां पर हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।